Okay students, today we will talk about resistors in parallel. In the previous video we have talked about the resistors in series, जिसमें अपन ने देखा था कि in a series combination आपका जो करंट है throughout the circuit remains same. जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो एंड देन कम बैक टू इट. ऑल्सो जो भी मेरे सारे वीडियोज़ हैं उन सभी के आपको PDF हैंड रिटन नोट्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है और वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप नोट्स भी वहाँ से गैदर कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट रजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज इज कनेक्टेड व्हेन the resistors are connected end to end, okay, and the parallel we will talk about in detail in today's session, how current and potential difference vary. But how to identify a parallel combination? It is when the resistors are connected side by side. So to go through it we will follow the activity which is given in your NCERT book on page number 230. Okay, so activity 12.6, look at the activity. This is the circuit diagram. There is a battery and in the simulation we have taken it as 8 volt. It is connected to 3 resistors R1, R2 and R3, which here we have R1 2 ohm, this is our R2 and this is our R3. 2 ohm, 8 ohm and 4 ohm we have taken as the value of R1, R2 and R3 respectively, and a voltmeter we will join it later on, and this is connected, the wire is now connected with an ammeter. This is the ammeter and this is the key which is closed. This is also a key which is closed. Okay, so we have make a parallel combination. The respective points are also with the simulation diagram, all connected in a voltmeter parallel with the combination of resistors. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. This current I, we have, according to our simulation, the current I is equals to 7 ampere, okay, when it is connected at this position. The potential difference across each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistance. First we have to take the voltmeter reading, it gives the potential difference V. अपन को यहाँ पे potential difference लगाना है, तो let us go through the simulation. This is the circuit diagram which I have explained you right now. Now I have to connect this voltmeter across these ends. Now the switch is open, now the switch is closed and the current reading is 7 ampere that we have noted down, and the potential difference across these 2 points is also 8 volt, which is equal to the potential difference applied by the battery. So just note it down in the, so voltmeter, that is this reading when it is connected is 8 volt. Now what is saying, the potential difference across each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. Now we have to check that यहाँ पे जो potential difference आया that is 8 volt, वो जब मैं इनके across S और T के across potential difference जब measure करूँगा तब भी V आएगा. P और Q के पॉइंट्स पे जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूँगा तब भी सेम V दैट इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट आएगा, और L और M के बीच में भी जब मैं मेजर करूँगा तब भी 8 वोल्ट आएगा. यही अपन को चेक करना है और ये चेक करते हैं अपन. नाउ आई एम पुटिंग एट दीज पॉइंट्स.
सो दीज आर द पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली एज एस एंड टी। देखो एस एंड टी में भी 8 वोल्ट आ रहा है। नाउ दीज आर द 2 पॉइंट्स पी क्यू, वहाँ पे भी 8 वोल्ट आ रहा है, एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स एल एम, जहाँ पे भी कितना आ रहा है 8 वोल्ट। इट मीन्स वोल्टेज आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस देखो, सब में वोल्टेज आपकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, दैट इज 8 वोल्ट। और वो किसके इक्वल है, जो आपने बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो यहाँ पे इन योर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, what we can say, the potential difference, therefore you can say, therefore the potential difference across each resistor is equal to the potential difference across the combination or the potential difference applied by the cell or battery. So it is in our case which is equals to 8 volt, and the current reading here when I have connected ammeter at the near the switch in this main circuit is 7 ampere. Okay, now look at the second point. Take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit. Let us do this. What we have to remove the ammeter and voltmeter from the circuit, that we have done. Let us put a wire here. Okay, now what is saying, voltmeter and ammeter अपन ने हटा दिया है. Now insert the ammeter. Now read this next line. Insert the ammeter in series with the resistor R1. अब मुझे यहाँ पे एमीटर लगाना है और यहीं पे वोल्टमीटर लगाना है. नो वोल्टमीटर तो अपन ने लगा रखा है, पहले चेक किया था ईच के अक्रॉस जो कितनी आई थी वैल्यू, 8 वोल्ट आई थी. हर जगह अपन ने लगाया था, यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह 8 वोल्ट आया था. तो अब अपन को एमीटर जो अपन ने यहाँ लगाया था दैट इज 7 एम्पियर. अब ये करंट अपन को ईच रेजिस्टर के अक्रॉस चेक करना है. तो सबसे पहले इसने कहा है R1 के अक्रॉस एमीटर आपको कनेक्ट करना, उसकी रीडिंग निकालनी है. ठीक है, तो लेट अस, ये मेरा सर्किट, ठीक है, ये मैंने स्विच को क्लोज कर दिया. नाउ दिस इज सिमिलर टू द एमीटर. अब मैं जहाँ पे ये पॉइंटर ले जाऊंगा वहाँ पे ये मुझे करंट मेजर करके देगा. तो चेक कर लेते हैं. पहले यहाँ कितना आया था 7 एम्पियर. लुक द रीडिंग इज 7 एम्पियर आ रही है जब यहाँ पे अपन ने एमीटर लगाया था. ओके, तो ये मेरा R1 है, दिस इज माई R1. तो यहाँ पे करंट देखो कितना आ रहा है 4 एम्पियर. जहाँ 2 ओम दैट इज माई R1, वहाँ पे करंट कितना है 4 एम्पियर. ठीक है, लिख लेते हैं. तो यहाँ पे मेरे एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है, दैट इज माई, जहाँ पे रेजिस्टेंस R1 मेरा कितना था, R1 इज माई 2 ओम, और वहाँ पे I1 अगर मैं लिख लेता हूँ, वहाँ पे करंट देखो यहाँ पे I1 शो है, ये I1 यहाँ पे है, ये मेरा 2 एम्पियर. सिमिलरली R2 पे कितना है 8 ओम, R2 पे 8 ओम है एंड R3 पे 4 ओम है. ओके, यहाँ पे I2 मुझे कैलकुलेट करना है और यहाँ पे मुझे I3 कैलकुलेट करना है. तो उसी पॉइंटर को अपन यहाँ पे ले आते हैं. ये मेरा R2 है. नाउ लुक एट द रीडिंग इन द एमीटर, इट इज़ 1 एम्पियर. यानी इस ब्रांच के अंदर 8 ओम वाली ब्रांच के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर. तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं. दैट इज हेयर इट इज़ माई 1 एम्पियर एंड R3 दैट इज़ 4 ओम. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है 2 एम्पियर. यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 4 था आपका, यहाँ पे 1 और यहाँ पे
2 एम्पियर। चेक कर लेते एक बार, 4 1 2, तो तीनों में आ गया करंट, और यहाँ पे कितना था 7, तो यहाँ पे I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई, एंड I is the current in this circuit which is equals to 7 ampere. Now look at the readings. यही अपन ने कर लिया. Similarly measure the current through R2 and R3. Let these be I2 and I3. What is the relationship between I1, I2, I3? Now look at the readings of I1, I2 and I3 and compare with the capital I. Simple सा, can we say that कैपिटल I जो है मेरा वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और वो होना भी चाहिए. क्यों? जो करंट मेरा इस सर्किट में फ्लो हो रहा था I1, ये I1 जो फ्लो हो रहा था, सॉरी I करंट जो फ्लो हो रहा था, वो इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, 3 ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज I1, I2 एंड I3. तो जो करंट आया है वही तो 3 में डिवाइड हुआ है, तो और वापस ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं. तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, जो करंट आया था उसी के इक्वल होगा ना. बीच में करंट कहीं थोड़ा ना आपका प्रोड्यूस हो रहा है. तो सिंपली यहाँ पे जो करंट आया था वो 3 में डिवाइड हुआ था और वापस यहाँ पे तीनों आकर मिल गए. दैट इज सिंपली द इक्वेशन सेज कैपिटल I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ सिमिलरली जैसे सीरीज में क्या था, now by applying Ohm's law, what we can say, the total current in the circuit will be equals to the potential difference. We know that Ohm's law is what, V equals to IR. IRP stands for resistance in parallel combination, total resistance in the parallel combination. Okay, so total current will be total potential difference upon total resistance, where RP is the total resistance in parallel combination. Okay, so also we can say, also applying Ohm's law for individual resistor. मैं हर एक रेजिस्टर के लिए क्या लगा रहा हूँ, ओम्स लॉ. तो सिमिलरली I1 विल बी इक्वल्स टू V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो अपन ने देखा था सब जगह क्या रह रहा था, सारे पॉइंट्स के लिए R1, R2, R3 के लिए 8 वोल्ट ही आ रहा था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह रहा था, सेम. ये अपन ने लाइन लिखी है यहाँ पे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन और द अप्लाइड, यानी इक्वल है सब जगह. तो ये V अपॉन R1 I1 हो गया. सिमिलरली I2 will be V upon R2 and I3 will be V upon R3. Now putting the values of I1, I2 and I3 in this equation number 1. Let us say this is my equation number 1. So putting values of I1, I2 and I3 in equation 1. So look, I को भी अपन रिप्लेस कर रहे हैं V बाय आर पी से. I1 हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3. Now V is common from both the sides of the equation and it will be get cancelled. So V upon RP will be equals to V common आ गया, ब्रैकेट में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. As V is common, it will get cancelled out. So I get the equation 1 upon Rp equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is the equation for the total resistance in a parallel combination. This you have to remember. So 1 upon Rp will be equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3.
So now for our example, what we have taken the values for our example, 1 upon Rp यानी total resistance in our circuit will be 1 upon 2 plus 1 upon 8 plus 1 upon 4. So which is equals to, let us take this solution. How to solve this fraction? This is the mathematical operation you have to perform. Take the LCM 2, 4 and 8. The LCM will be 8. 2 की टेबल में 8 कितना टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, प्लस 8 की टेबल में 8 टाइम 1, 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स, सो 1 अपॉन Rp. डोंट राइट इट Rp, इट इज 1 अपॉन Rp. रेसिप्रोकल करेंगे लास्ट में. ओके, सो ये अपने पास वैल्यू हो गई 4 + 1 5 6 7 7/8 1 अपॉन Rp. सो नाउ यू हैव टू रेसिप्रोकल, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Rp. अपन को Rp की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन Rp नहीं चाहिए. सो Rp कितना हो जाएगा? इसको रेसिप्रोकल किया तो दोनों तरफ अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगे. तो ये क्या हो गया? 8/7 और यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम. तो ये हो गया आपका Rp = 8/7 ओम. नाउ अपनी जो करंट की रीडिंग आई थी याद करो. करंट की रीडिंग कितनी आई थी? 7 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 8 वोल्ट. अब देखो चेक करते हैं. बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, V = IR Rp. Rp की वैल्यू आ गई अपने पास, तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन Rp. V कितना था? 8 वोल्ट. Rp कितना है? 8/7. तो ये कैसे हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? 8/8 × 7. 7 ऊपर चला जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ एस 7 एम्पियर. आई बात समझ में? वैसे ही आपको I1, I2, I3 कैलकुलेट करना है, वो भी आप कर सकते हो. कैसे? मुझे I1 की वैल्यू कितनी आई थी बताओ? I1 आया था 4 एम्पियर. तो I1 4 एम्पियर मुझे क्रॉस चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन R1. V कितना था? 8. R1 कितना है? 2. तो ये कितना हो गया? 4 एम्पियर. देखो वही आ रही है वैल्यू. I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R2. V कितना है? 8. R2 कितना है? 8. कितना आया? 1 एम्पियर. I3 क्या है? V/R3. V is 8, R3 is 4, which is 2 एम्पियर. तो देखो यहाँ पे भी वही I = I1 + I2 + I3 हो रहा है अपना प्रूफ, which is 7 = 4 + 1 + 2. तो 7 = 7, hence proved. तो कुल मिला के what is the conclusion you have to remember? That in a parallel combination, what you have to remember is that conclusion of this activity is that in a parallel combination, the potential difference across each resistor is same and current gets divided. That is, current has different value in different resistor branch, you can say, and equivalent resistance, this is the first point, and Rp, that is equivalent यानी total resistance of the circuit. equivalent resistance का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन Rp = 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 + 1 अपॉन R3. और जो भी रेजिस्टेंस है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सबका रेसिप्रोकल में सम करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका? Rp. और लास्ट में डोंट फॉरगेट, नोट इट डाउन. काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं. डोंट फॉरगेट टू
reciprocal at last to get value of RP। ये करना नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट बना के याद रखना है कि लास्ट में 1/RP की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट में आपको क्या करना है, उसको वापस से रेसिप्रोकल करना है, तब जाके RP की वैल्यू आएगी। ओके, नाउ वी विल ट्राई सम एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन योर बुक। लेट अस टेक 2 examples on page number 214 given on in your NCERT book, and we will try to solve and apply the what we have learned so far. Now read this example fast. In the circuit diagram given in figure 12.10, where is your figure 12? This is your figure 12.10. This is the figure 12.10. Let us copy it. Okay, this is your figure 12.10. Okay, suppose the R1, R2 and R3 have the values 5, 10 and 12. यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 कितना है 5 ohm, R2 is your 10 ohm and R3 is your 30 ohm, which have been connected to a potential difference of battery 12 volt. This is a 12 volt battery. Calculate A current through the each resistor, total current in this circuit and total circuit resistance. पॉज करके सॉल्व करिए फास्ट। ओके, कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट में पूछा करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सो अभी अपन ने निकाला था, कैसे किया था? बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। करो अप्लाई, V इक्वल्स टू IR होता है, तो I1 दैट इज इन द करंट इन द रेजिस्टेंस R1 विल बी V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 12, R1 इज 5, सो 12 by 5 इज 2.4, so 2.4 ampere is the value of I1. Similarly, I2 will be V by R2. V is 12, R2 is 10, so 1.2 ampere, and I3 is how much? V by 30, that is 12 by 30, which is equals to 0.4 ampere. So these are the values for I1, I2 and I3. So this is the first part. Total current in this circuit. Total current क्या हो जाएगा? The sum of all these I1, I2 and I3. So total current I will be equals to I1 plus I2 plus I3. Okay. So I1 is how much? 2.4 plus 1.2 plus 0.4. So which is equals to how much? This is 4. 1.2 plus 0.4 हो गया 1.6. 1.6 plus 2.4 is 4 ampere. So this is the value for the B part, that is the total current in this circuit is equals to 4 ampere. And total circuit resistance, the total circuit resistance का फॉर्मूला क्या है? 1/RP, 1/R1, 1/R2 plus 1/R3. Just put the values and solve it very carefully. 1/R1 is 5 plus 1/10 plus 1/30. So what will be the LCM? 30 will be the LCM. 5 की टेबल में 30 6 times, 3 times, 1 times, which is 1/RP. So 1/RP is equals to 6 plus 3 9 plus 1 10 by 30. रेसिप्रोकल करना है नाउ, तो RP will be equals to 30 by 10. 0 से 0 कैंसिल, सो RP की वैल्यू क्या आ गई? 3 ohm. So this is the value of equivalent resistance. And note one thing,
हमेशा जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आरपी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी आपके लोवेस्ट वाले भी रजिस्टर्स से। क्या मतलब हुआ इस मतलब कि यानी आपके पास 3 रेजिस्टेंस थे R1, R2 और R3, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे कम वाले रजिस्टर से भी कम आएगा इफ दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नोट बना के एक पॉइंट भी लिख सकते हो टू चेक। देखो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको ताकि आपको कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपका आंसर किसी भी लोवेस्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स की है। ओके, सो द इक्विवेलेंट, so you can say the value of equivalent resistance in a parallel combination is always less than the least resistor in the circuit, least resistance in the circuit। हमेशा ऐसा ही आएगा, वैल्यू हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आएगी। तो यहाँ पे लीस्ट क्या था 5, तो आंसर 5 से कम आएगा और देखो आ भी रहा है 3 ओम। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स। एक और एग्जांपल है नेक्स्ट 12.9, वो भी देखते हैं। ट्राई कीजिए 12.9 जिसके पास बुक ओपन है, और जनरली मेरे लेक्चर्स में आप एनसीईआरटी बुक पास लेके ही बैठे ताकि यू विल बी एबल टू डू इट बाय योर ओन। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 12.9 ऑन पेज नंबर 215। सेम वही है फिगर 12.12। अच्छा, इसमें फिगर 12.12 भी है तो इसका भी फिगर ले लेते हैं। लेट अस से ये रहा, इसको बड़ा कर देते हैं। ये आपका फिगर है 12.12। इसको थोड़ा सा ओके फाइन। चलो पॉज करके क्वेश्चन रीड करिए एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर्स और फिर क्रॉस चेक करते हैं। डू इट फास्ट। ओके, यहां पे देखो वैल्यूज गिवन है। ये मेरा 10 ओम, ये मेरा 40 ओम, ये मेरा 30 ओम, ये मेरा 20 ओम और ये मेरा 60 ओम, और ये 12 वोल्ट की बैटरी गिवन है। करंट आई फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अपन को। टोटल रेजिस्टेंस, तो देखो यहां पे क्या है इस सर्किट के अंदर, ये R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये दोनों, ये तीनों कैसे R3, R4, R5 पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा इसका कुछ आंसर आएगा पैरेलल में RP, और इसका भी कुछ RP आएगा। वो दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो ये कॉम्बिनेशन है। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो पहले मैं अपर सर्किट को सॉल्व करता हूं, उसको बोलता हूं 1/RP1। 1/RP1 is 1/R1 plus 1/R2 which is equals to 1/10 plus 1/40 LCM 40, 4 plus 1, this is 1/RP1. So RP1 will be 40/5 which is 8 ohm. So RP1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 ओम। सॉल्व किया होगा, आपके पास भी 8 ओम आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली नाउ दिस, इनका जो रिजल्टेंट है उसको मैं बोलो RP2, इसका आया था RP1। सो द बॉटम पार्ट इज RP2
1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, जो कि किसके इक्वल है 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम इज 60, 30 के टेबल में 60 2 टाइम्स, 20 के टेबल में 60 3 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स, तो ये हो गया 1/RP2। तो RP2 रेसिप्रोकल किया मैंने, ये हो गया 60, 2 प्लस 3 प्लस 1 इज 6, और ये भी कितना हो गया 10 ओम। तो RP2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। नाउ RP1 एंड RP2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो दोनों सीरीज में हुए ना भाई, इनका जो, अब ये सर्किट को मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, सिंपल सा, ये हो गया RP1 और ये हो गया RP2। अब देखो ये एंड टू एंड कनेक्शन है भाई, ये तो सारा सॉल्व कर लिया ना, एमीटर लगा हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे की है वो कोई इशू नहीं है। ये मेरा कितने वोल्ट का बैटरी की बना है 12 वोल्ट, ये प्लस माइनस 12 वोल्ट करंट प्लस से माइनस, दिस इज माय कंप्लीट सर्किट। तो ये आप सीरीज में हो गए, तो आर सीरीज यानी आर टोटल क्या हो जाएगा RP1 प्लस RP2 8 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 18 ओम। सो आर टोटल कितना हो गया 18 ओम इज द आंसर। इज दैट क्लियर? 18 ओम कैसे आया? पहले आपने RP1 निकाला, फिर RP2 निकाला, और फिर दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन था तो दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो आपके पास R टोटल आ गया। नाउ in the B part what is saying total current flowing in the circuit, तो total current flowing, तो we know that total current I क्या हो जाएगा V upon R total, V is 12, R total is 18, so this is 2/3 which is equals to 0.66, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा, और you can say 0. round off 67 ampere. So this is the value of total current by using Ohm's law. यस और नो? तो क्लियर हुआ? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल एक तो आपके बोर्ड के अंदर पक्का सीरीज और पैरेलल से पूछा जाता है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एज वी हैव कवर्ड सीरीज एंड पैरेलल, देयर इज अ क्वेश्चन विच इज जनरली आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट हाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन has advantage over सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी इस पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज प्रीफर्ड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हाउस होल्ड सर्किट्स। तो देखो आपने देखा होगा सीरीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो सीरीज में पहला तो अपन ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, करंट इज सेम इन सीरीज। तो जो भी अप्लायंसेज आपने लगाया उसमें सेम करंट फ्लो होगा, चाहे एक जगह आप हमेशा, अगर मान लो एक जगह आप एलईडी बल्ब लगा रहे हो और एक जगह इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहे हो, तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। क्या दोनों में सेम करंट फ्लो चाहिए? दोनों को सेम करंट नहीं, एलईडी में स्मॉल करंट चाहिए और आयरन में आपको लार्ज करंट चाहिए। देयरफॉर करंट इज सेम इन सीरीज, और यू कैन से इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, which is you can say impracticable for household appliances, as different appliances require different value of current, but in case as whereas in parallel current is different
इन डिफरेंट रजिस्टर्स। तो वहाँ पे आप करंट को डिवाइड कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये है कि करंट सेम रहता है सीरीज में, तो हर वैल्यू को, हर अप्लायंसेस को सेम करंट मिलेगा, जो कि आपके फिजिबल नहीं है। अपन नहीं चाहते सेम करंट फ्लो हो, ठीक है ना। कोई फ्यूज़ भी हो सकता है, ज़्यादा करंट फ्लो करा दिया आपने कोई छोटे से अप्लायंसेस में, दैट वाई सीरीज इज नॉट प्रिफरेबल। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ एनी अप्लायंसेस gets fuse or out of working, then all the other appliances will not work. किसके केस में होगा ऐसे? इन केस ऑफ सीरीज, बिकॉज अगर सीरीज में एक भी बल्ब, मान लो ये सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ये मान लो, चलो ये ठीक है, ये मान लो ये मेरा खराब हो गया, तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट का काम करेगा, तो करंट जो फ्लो हो रहा था वो यहाँ तक, सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं, सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, आपका चार्ज फ्लो हुआ ही नहीं, तो बाकी के जो अप्लायंसेज है, मान लो ये अप्लायंसेज और ये अप्लायंसेज भी काम नहीं करेगा, बिकॉज व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट देन ओनली अप्लायंसेज विल वर्क, देन ओनली करंट विल फ्लो। सो ये इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है आपके सीरीज का, बिकॉज एक भी फ्यूज होगा तो अदर नहीं करेंगे काम। बट अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होगा, देखो ब्रांचेज है, मान लो आपका कोई भी खराब हो गया, मान लो ये खराब हो गया, तो करंट इसमें से नहीं जाएगा, बट इसमें से और इसमें से तो जाएगा, तो ये और ये तो आपके ग्लो करेंगे, ये नहीं करेगा। सो these are the 2 points which you have to make sure while answering the advantages of parallel combination over series combination. Okay, so what we have learned in this session is, have a quick recap. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन ने देखा करंट आपका डिवाइड हो जाता है ईच ब्रांचेज में, और इन सब का सम जो होगा will be equals to the total current flowing in the circuit, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईच रजिस्टर के अक्रॉस, चाहे आप कोई भी लो पैरेलल के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो किसके इक्वल होगा, सेल और बैटरी के अप्लाइड। दूसरा, व्हाट विल बी द आर इक्वलेंट फॉर्मूला, 1 अपॉन आर पी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, और लास्ट में ये याद रखना है, डोंट फॉरगेट टू रेसिप्रोकल एट दी वैल्यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरपी। और ये एग्जांपल्स दो अपन ने सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस, शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, जो क्वेश्चंस है आपके नेक्स्ट पेज पे उसको अपन सॉल्व करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके गिवन है ऑन पेज नंबर 216, और उसके बाद अपन नेक्स्ट ये एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इस पे। टिल देन पढ़ते रहे एंड एंजॉय करें।